आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर हमला करने वाले 3 हाइब्रिड दहशतगर्द गिरफ्तार, कहा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। बडगाम जिले में पहली मर्तबा परवास स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 9वीं और 10वीं जमात का टेस्ट हुआ मुनक्किद। 650 से ज्यादा तुलबा ने टेस्ट में की शिरकत। ताज़ा बर्फबारी से बंद हुई सड़कों को खोलने का काम मुसलसल जारी, अवाम ने मुतल्लिका एजेंसियों का किया शुक्रिया अदा। और नौजवानों को खेलों में मशगूल रखने के लिए पुलवामा जिले में भारतीय फौज ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया इनाकाद। कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सेवन ने आज कहा है कि श्रीनगर शहर के बमीना इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते एक पुलिस एहलकार पर हमले में मुलविस 3 हाइब्रिड दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। वजह है कि कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर इस वक्त हमला किया गया था जब वो 9 दिसंबर को ड्यूटी के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। हमारे साथ ताउन करें तो हम तरक्याती सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। Today's press briefing is about the success that J&K police has achieved in tracing the killers of one of our policemen who was very recently attacked when he was after duty, when he returned home and was about to retire for the day. He was attacked. Constable Mohammad Hafiz Chak, who was posted in police post Pan Mohalla of Fateh Kadal police station. By God's grace, the constable has survived, though he has suffered 3 bullets, 2 of them pierced and went through and through. One was stuck in near to his spine and it has been removed. Luckily he is, as I speak, he is stable and doing well. We hope and pray by God's grace he would be out of danger and would back to us hale and hearty. But as far as the assassins are concerned, the killers are concerned, they had done their job. They had finished it. 6 bullets were fired, 3 hit him, 3 did not. And the police, in a piece of very professional work, has been able to uncover the entire conspiracy. The story goes like this. The plan of killing policemen off duty was hatched by a designated terrorist now in Pakistan by the name of Arjuman Guljar of Kharwatpura in Pulwama district, known by the code name of Hamza Burhan. Is that correct? So he is the start point as far as we are concerned. He hatches a conspiracy and he has caches of pistols here and there hidden. He arranges 3 persons to kill. In a way, the mastermind here is one Danish Ahmad Malla, son of Ghulam Muhammad Malla, a resident of Hamdaniya colony, where actually our constable was living. And through him,
he recruits to what we generally have been calling as kind of what terrorists, the hybrid terrorists. So, meaning these two persons are like sleeper cell who get activated, but otherwise they live normal lives. So, the two others are Imtiaz Ahmad Khande, son of Tariq Ahmad Khande. He is also a resident of Hamdaniya colony. And the third person is Mehnan Khan, also is known as Mehran Khan. Is son of Mehrazdin Khan. He is from Khawazapura, Saidpura in Rainawari in Srinagar. So these three persons here in J&K in Srinagar, in cahoots with the man in Pakistan who is Arjuman Guljar. They manage pistol, recce him, study his movements for several days, and finally attack him. वादी कश्मीर के जिला बडगाम में प्रवास स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 9वीं और 10वीं जमात का एक टेस्ट मुनक्किद किया गया है, जिसमें तकरीबन 650 तलबा ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया है। बडगाम में पहली बार बडगाम कोचिंग दौर में इनकलाब लाने के लिए NIT और डॉक्टरों की जानिब से ये टेस्ट लिया गया है। वो असातिज़ा जो 11वीं और 12वीं जमात के मेडिकल नॉन मेडिकल तलबा को तैयार करते हैं, वही असातिज़ा फाउंडेशन की क्लासों को शुरू से ही नीट, JEE मीन्स और एडवांस जैसे इम्तिहानात के लिए पढ़ाएंगे। myself Shah Imtiaz, working as physics educator है क्लास से बड़गाम बिलीव करने के लिए जो ये पहली बार बड़गाम में हो रहा है कि हम एक इनिशिएटिव लिया है NITians ने, IITians ने, क्या ताकि एक बड़गाम के जो भी हर एक गरीब का एक बच्चा है उसको राइट फ्रॉम 9th क्लास से प्रॉपर ग्रूमिंग की जाएगी फॉर द नीट ओरिएंटेड एग्जाम्स, JEE एडवांस एग्जाम्स एज वेल एज IIT JEE एग्जाम्स, ताकि उसको जो भी दिक्कतें 9th से आती थी कि उसको प्रॉपर ग्रूम किया नहीं जाता था, और जो भी सिलेक्शंस की बात है, कंसेप्चुअली पढ़ाना, एक उसका एक कंसेप्ट डेवलप करना, एक न्यूमेरिकल एथोनिकेटेड कराना, मतलब या एक बुक एथोनिकेटेड सॉल्व करना, वो चीज़ें बच्चों को दिक्कत आती थी। सो इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था ताकि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट डे ही बच्चों को क्लासेस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर ले, ताकि उनको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स कराए, ताकि बच्चों को सिलेक्शंस में, देखो पढ़ना तो सबको पता है क्या पढ़ना है, बट एक टॉपर का एक बड़ी बात होती है, टॉपर्स डू थिंग्स, दे डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वेज, हमें वो लुक आफ्टर करनी होती है। उसके लिए एक बच्चे को प्रॉपर ग्रूमिंग करनी होती है कि कितना उसको थ्रैश अवॉइड करना है, कितनी उसको न्यूमेरिकल में कहीं पे दिक्कत आती है, जैसे आप पेपर पैटर्न चेंज होता है, बच्चों को पेपर पैटर्न भी पता नहीं होता, कितना उसको एथनिकेटेड चीजें लिखनी है, सो दैट कि एक फुल फ्लेज्ड हमने इसमें सारी चीजों का ध्यान रखा है। सो अभी तक जो बड़गाम में नहीं हुआ है, हमने जो वादे किए हैं कि वो विल रिवोल्यूशनाइज द कोचिंग एरा ऑफ द बड़गाम, क्योंकि वी हैव द फैकल्टी फ्रॉम NITians, IITians एंड द मेडिकल डॉक्टर्स। सो ये पहली बार बड़गाम में, फर्स्ट टाइम इन द बड़गाम एरा कि कोचिंग बच्चों को एक अफोर्डेबल फी पे हो जाए, ताकि एक गरीब बच्चा भी मेडिकल डॉक्टरी सोचे, इंजीनियरिंग सोचे। और इतना ही नहीं, जहां तक मैं अपनी बात करूं, चाहे काय में मैंने पढ़ाया, चाहे वे में पढ़ाया, चाहे मैं फॉरेन असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, उतना सब कुछ देख के कि मैंने ये सोचा कि बड़गाम में हर कोई एक गरीब का तबका का जो बच्चा है वो भी उस लेवल का सर उठा के जाए। सो जो बच्चों का रिस्पॉन्स था, इट वाज ट्रूली फिनोमिनल, एंड टुमारो विल डायरेक्ट मूव टू द क्लास वर्क, ठीक है। और इनको वही फैकल्टी पढ़ाएगी जो हमें 11th को पढ़ाती है, जो नीट को पढ़ाती है, जो JEE एडवांस को पढ़ाती है। सो एंड थैंक यू सो मच अगेन बिलीविंग ऑन अस, एंड इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट यू डाउन, एंड थैंक यू सो मच। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में कल की ताज़ा बर्फबारी के बाद 109 RCC बैकएंड कुपवाड़ा के जरिए साधना पास, तंगधार, केरन और मैचल सेक्टर में बर्फ साफ करने का काम मुसलसल जारी है और यहाँ मशीनरी और अफरादी कुव्वत पूरी तरह से अपने काम में मसरूफ है।
वादी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में भी कल हुई ताज़ा बर्फबारी को सड़कों से हटाने का सिलसिला जारी है और राजदान के करीब गुरेज इलाके में BRO 56 इंडिया के जरिए बर्फ को सड़कों से हटाया जा रहा है, जिस पर लोगों में भी एक बड़ी खुशी देखी जा रही है और वो BRO का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाका तहाब में फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल ने नौजवानों को खेलों में मशगूल करने के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया है, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 8 टीमों ने शिरकत की है। इस टूर्नामेंट के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के टूर्नामेंट्स का इनाकाद कर रही है, ताकि मकामी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके। नौजवानों को खेलों से मुंसलिक करने के लिए जिला इंतजामिया खेलों की सरगर्मियां भी कर रही है, ताकि नौजवान खेलों से वाबस्ता हों और मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहें। गवर्नमेंट हाई स्कूल ताहाब पुलवामा में टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोयल और बंदरपुरा के दरमियान खेला गया, जिसमें बंदरपुरा ने पुलवामा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल 7 पॉइंट से जीत लिया है। मकामी लोगों और इलाके के खिलाड़ियों ने 55 राष्ट्रीय राइफल का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि फौज मकामी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का इनाकाद कर रही है। RR 55 ने आज इसमें बहुत मज़ा आया, हमें अच्छे को मिलना, अच्छे हमें यहाँ पे अच्छे मतलब यहाँ पे अंपायर्स भी अच्छे थे, मतलब कि ग्राउंड भी बहुत अच्छा था। और जो ये 55 RR है ये हमें मदद करती है क्रिकेट खिलाने में, मतलब कि ऑर्गेनाइज करते हैं वॉलीबॉल टूर्नामेंट में। और जो मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आए वापस, मतलब कि ड्रग्स कर रहे हैं और नशे कर रहे हैं, अलग अलग की तरह नशे कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग। मैं उनको ये दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कोई नशा ना करे। वो जी मैसेज देना चाहते हैं कि जो मतलब यंगस्टर्स हैं वो बुरे कामों में मुलव्वस हो गए हैं, इसलिए वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इससे बच्चे बुरे कामों से बचे और खेलकूद में अपना 100% दें। एक गैर सरकारी तंजीम टीम रेड ने जिला अस्पताल कपवाड़ा में गरीब और जरूरतमंद अफराद में कंबल और दीगर जरूरियात का सामान तकसीम किया है। इस दौरान वहां टीम रेड के चेयरमैन सादत असलम वानी और वकार खान की मौजूद भी रहे, जिनकी मौजूदगी में ही इस नेक काम को अंजाम दिया गया है। जो कि हमारी टीम है और हमारे जो कुपवारा के जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोगों के साथ, लोगों की खिदमत में 24 घंटे और हफ्ते के पूरे 7 दिन रेडी होते हैं। अब जो सवाल है ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव का, ये हमारी सालाना ऐसी कैंपेन है जो हम हर साल चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई फार फ्लंग एरिया हो, या चाहे हमारी टीम के कुछ मेंबर्स आइडेंटिफाई करें कई ऐसे इंडिविजुअल जिनको एक बेसिक कम्बल की फैसिलिटी से जो लोग जो नहीं होती, उनके पास नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम ऐसे सर्वेस करते हैं और ऐसे रेकीज करते हैं जहाँ पे हमें लगता है नीड है ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव की। और आज हर साल की तरह आज भी हमने शुरुआत इस साल की ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव की कुपवारा हॉस्पिटल से की, और आगे आने वाले दिनों में हम कई ऐसे एरियाज़ भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर ब्लैंकेट्स को हम तकसीम करेंगे लोगों को। देखिए, हमारी एक स्पेसिफिक हेल्थ विंग है जो डॉक्टर आशिक साहब हेड कर रहे हैं। मल्टी कम्बल आज तो हम एक सिंपल एक ब्लैंकेट जो है ब्लैंकेट की सहूलियात एक सिंपल सी फराहम करने आए हैं लोगों को। आने वाले दिनों में, जैसे आपने प्रीवियसली भी इरशाद साहब आप खुद भी आए हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप्स में, हम ऐसे मेडिकल कैंप्स और यहाँ पर कुपवारा के ज़िले में रखेंगे, और कई ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ में स्पेशली जहाँ पर लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं फराहम हो पाती, उनके लिए हम जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज़, और बिल्कुल इंशाल्लाह हेल्थ के सेक्टर में जितना टीम रेड से हो सके काम करेंगे। ये बेसिकली हम ज़्यादातर काम करते हैं अवेयरनेस के लिए। हमारी NGO का मेन एक मोटिव यही है कि हम यूथ को, नौजवानों को, जो हमारे जितने भाई बहन हैं या हमसे बड़े हैं छोटे हैं, हम उनको यही एक मैसेज देते हैं कि टीम रेड ही नहीं, आप अगर आप सोशल वर्क करना चाहें, अगर आप किसी की मदद करना चाहें, तो आप एक छोटी सी कम्बल किसी को देने से लेकर किसी भी बड़े शोबे का सोशल वर्क, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म तक सोशल वर्क कर सकते हैं।
तशक्कुर और यकजहती के एक शानदार मुजाहरे में भारतीय फौज की वज्र डिवीजन कपवाड़ा ने साबका फौजियों की एक तकरीब की मेजबानी की है। इस रैली में 300 से ज्यादा साबका फौजियों, वीर नारियों, जंगी बेवाओं और जिला कपवाड़ा से इनके ज़ेरे कफालत अफराद ने शिरकत की है। इस रैली ने इन बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया है जिन्होंने 1971 की भारत पाक जंग के दौरान कुर्बानियां दी थीं। ये रैली विजय दिवस के मौके पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें साबका फौजियों और उनके खानदानों के साथ जुड़ने और उनके मुख्तलिफ ज़रूरियात और खदशात को दूर करने पर तवज्जो। शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में खासकर 28 डिव के GOC साहब ने जो कदम उठाया है एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर ऑर्गेनाइज के लिए, तो ये यहाँ पर ही नहीं, ये कहीं भी जाता है, चाहे करना जाता है, चाहे केरन जाता है या मचल सेक्टर में जाता है। दूर दराज इलाकों में जो भी आज के डेट में एक्स सर्विसमैन या जो पुराने एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उनको हल करने में बहुत मदद करता है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान आर्मी की जो मोरालिटी है उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मोरालिटी जो सोच है, इथिक्स एक्स सर्विसमैन के लिए, वो दुनिया में और कहीं नहीं है कि जितना हमारे हिंदुस्तान में एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक उनके लिए है। उन पर जो एक्स सर्विसमैन तकरीबन 2700-2800 एक्स सर्विसमैन है, लेकिन एक्स सर्विसमैन पर डिपेंड नहीं होता है, उनकी फैमिली जो है कम से कम 80,000 के करीब है और हिंदुस्तान, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं बहुत फख्र की बात कर रहा हूँ आज के डेट में कि मैं हिंदुस्तान आर्मी का एक कैप्टन और एक्स कैप्टन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ऑनर मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर और साबका मेयर श्रीनगर सलमान सागर ने आज जिला बांडीपुरा में हाजिन का दौरा किया है और यूथ ब्लॉक सदर हाजिन शौकत अहमद से इनकी वालिदा की इंतकाल पर ताज़ुयत की है। सलमान सागर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंचार्ज सोनावारी, हिलाल अकबर लोन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी थे। रहनुमाओं ने शौकत अहमद दार से इनकी वालिदा की इंतकाल पर ताज़ियत की है। सलमान सागर और हिलाल अकबर लोन ने मरहुमा की रूह के लिए दुआ की है और सोगवारों से हमदर्दी का इजहार किया है। ये हमारे एक यूथ के जो यहाँ हाजिन के टाउन के प्रेसिडेंट है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उनकी वालदा गुजरदारी और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही यूथ की बड़ी बेहतरीन क़यादत की है। जब शेर कश्मीर आए वो खुद एक, जब उनकी उम्र थी तो मैं नहीं समझता 20, 25, 22 साल के ज़्यादा उम्र थी उनकी, तो हमारी जमात ने क़यादत ने हमेशा यूथ को आगे जाने का मौका दिया हुआ है। आज भी हम कहते हैं आने वाले कुछ वक्त में 1-2 महीने में हम नए यंगस्टर, यंग लॉट को आगे आने का मौका दे रहे हैं और हमारे पास आज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में, हर प्रोविंस में हमारे पास एक वाइब्रेंट YNC जो है इन प्लेस है। तो बाकी यूथ को चैलेंज है, यूथ को आगे चलना है। पार्टी ने भी कोशिश की है हमको इंचार्ज बना के, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिलाल साहब इंचार्ज, ऐसे बहुत से लोगों को, और हम डाउन द लाइन YNC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम यंगस्टर्स को, और हमें बड़े फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ आज हमारे साथ इंजीनियर जुड़े हुए हैं, लॉयर जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, जिनको ये अलम आगे चलाने की शेर कश्मीर ने शुरुआत की है 1971 में। तो हमें पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ तक यूथ का सवाल है सेफ हैंड्स में है और इसकी क़यादत खुद उमर साहब कर रहे हैं, वो खुद मॉनिटर। पंडित अशोक भट्ट ने नंदकिशोर मंदिर सुंबल का दौरा किया है और नंदकिशोर पार्क के काम के बारे में सबका चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल जहांगीर अहमद से इजहार तशक्कुर किया है। अशोक भट्ट ने कहा है कि यह तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा मुतालबा था, लेकिन जहांगीर अहमद की मदाखलत से काम बड़े जोश व खरोश से जारी है। सबका चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल जहांगीर अहमद ने इस काम के लिए LG इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। नंदकिशोर महाराज की, ये किसी की ज़मीन ना मेरी है तो ना ये किसी सुंबल वाली की है, ये है नंदकिशोर महाराज की ज़मीन। लुक आफ्टर करते हैं यहाँ इसके खुर्शीद अहमद खांडे साहब। ये हमने इनको बोला था कि 32 साल से इन्होंने इसके बड़ी हिफाजत की है और तहे दिल, मतलब दिल की गहराई से मैं इनका शुक्रगुजार करूँ दोनों बंदों का कि जिन्होंने इसके लिए इतना बड़ी ये ले लिया, इनिशिएटिव ले लिया, जिम्मेदारी ले ली, इतना बुरा काम कर दिया कि दिल बाग हो गया जी। तो मज़ीद और भी काम तो बहुत सारे पेंडिंग है। एक तो इसकी फेंसिंग भी कह रहे कि जहांगीर साहब कह रहे कि अभी मैंने पूछा जहांगीर साहब को, जहांगीर साहब ने बोला इसकी फेंसिंग है, चारों साइड फेंसिंग होगी, बीच में से 2 रोड निकलेंगे इसके साथ में। मैं जहांगीर साहब ने मेरे को एक आश्वासन दिया कि मैं इसकी वाल पुट्टी भी करा दूँगा, मंदिर की वाल पुट्टी भी करा दूँगा, और मेरे को पूरा भरोसा है जहांगीर साहब के ऊपर कि करवा देंगे। जो ये वादा कर लेते ना, इन्होंने ये पूरा करके रखा है।
कर दिया। अभी तक जितने भी वादे इन्होंने मेरे साथ किए वो सारे कर दिए जी। टाइलें भी अंदर लगवाई, मंदिर के अंदर इन्होंने पिछले साल मेरे को लग रहा है 1.5 साल हो गया कि टाइलें लगवाई, क्योंकि इससे क्या है कि मंदिर की शोभा बढ़ गया, हमारी कश्मीरियत की शोभा बढ़ गई। इन्होंने आज क्या एक ना मिसाल कायम कर दी कि वाकया भाई हिंदुस्तान का मुसलमान या कश्मीर का मुसलमान की कितना आज मतलब कि इन जगहों की इबादत करते हैं, मतलब कि बड़ी कदर करते हैं। हम जैसे मस्जिद में जाते थे, पार हमारा ख्वाजा साहब का मेला लगता था, हम वहाँ जाते थे, और इन्होंने आज पक्का जिंदा दिली से मिसाल दी कि वाकया मैं नंद किशोर के साथ जुड़ा हूँ और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आज से 2 साल पहले अशोक जी ने मुझे 2-3 डिमांड दी थी इस मंदिर के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वो डिमांड इंशाल्लाह पूरी हो गई। तो खासकर अशोक जी एज उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट नंद किशोर मंदिर का वाइस एज पंडित, अब अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसी टाइम इसने एक लेटर भी आपने दी थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कि यहाँ ये काम होना चाहिए। और मैंने भी उस टाइम सोचा कि अभी एक माइनॉरिटी कमेटी जो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने भी कोशिश की कि हम इंसानियत और कश्मीरियत को हम ज़िंदा रखेंगे। तो जैसे हम अपनी मस्जिदों को मेंटेन करते थे वैसे भी हम इन मंदिरों को भी वैसे मेंटेन करें जैसे हम अपने मस्जिदों को करते हैं। तो कोशिश में मेरी यही रही। तो इंशाल्लाह इसकी पार्क भी बनी है और अंदर मंदिर में टाइल भी लगे, अब इसकी फैंसी करने है। और मैंने इसको भरोसा दिया अशोक जी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट इस नंद किशोर मंदिर का, तो मैंने उसको भरोसा दिया कि आने वाले टाइम में अगर इस साल तो अगले साल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम के रहने वाले तारिक अहमद गनई का नाम अवाम की आवाज में लिया है और तारिक की तारीफें की हैं। जिला कुलगाम के एक पसमानदा गांव गाड़ी हमा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जो ज्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं है, लेकिन इसके हौसले, हिम्मत और दूरअंदेशी से इसे अपने ही गाँव में कबाड़ियों को रिसाइकलिंग करने का यूनिट कायम करने पर आमादा किया है। और आजकल इसका ये यूनिट तारिक अहमद के साथ साथ कम से कम दीगर 60 से 80 बेरोजगार नौजवानों के रोजी रोटी का जरिया। अस्सलाम वालेकुम। जब आज अवाम की आवाज में मीडिया अलजी साहब ने मेरा नाम लिया है, मुझे खुशी के बारे में मुझे पता नहीं मुझे कितनी खुशी आई। जब इस मेरा नाम लिया, इस कुलगाम की भी खुशी है जब उसने मेरा नाम लिया है। एक नौजवान है जो इस साउथ पोल्यूशन को एक काम करके एक बिजनेस जमा लिया इसने और बेरोजगारी भी खत्म किया इसने। जितने भी इस गांव में बेरोजगार लड़के थे और 30-40 ऑटो वाले हैं और उनका भी रोजगार मिलेगा और हर किसी को रोजगार मिल गया इस काम से और जो इस यूनिट से। और मुझे इतनी अलजी साहब की इतनी भी उम्मीद है इस काम को और भी बढ़ा सकते हैं और भी बेरोजगार इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस काम में एडजस्ट हो जाएंगे। और मेरा अपने डीसी साहब के भी पास पूरा उम्मीद है वो भी मुझे इस काम को भरपूर हेल्प करेगा। उसने बोला भी मैं आधी रात को भी आपके लिए खड़ा रहूंगा, जब भी आपकी कोई परेशानी हो हर गम में मैं आपके साथ हूं। इस काम को आप जमा लो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हफीज चक पर हमला करने वाले 3 हाइब्रिड दहशतगर्द गिरफ्तार, कहा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने।